sir. Dipakar sir, we can share Yes, that sure, later. yes. Okay, so Dr. Rakshit Tandon, sir, he doesn't require any introduction because he's a man of substance and everybody is aware about him. But still, as a formality, I want to introduce sir. So Dr. Rakshit Tandon has created a revolution in the field of cybersecurity. He has touched lives of lakhs of people. He's a meritorious student of St. Peter's College, Agra, and has completed his master's in computer science from Delhi. An ethical hacker certified by the E-Commerce Consultant Council, a Microsoft certified professional by Microsoft, certified computer forensic expert from Brain Bench USA. He's a director, co-founder, Hackdev Technology Private Limited, and Hacker Shala, Codes, NAG, and Hacking Brawl. He's a consultant, Internet and Mobile Association of India. He's a president of Joint Action Team for combating cybercrime against women and children. Other than his permanent roles with the various organizations, he has undertaken the Herculean task of traveling the nation and has spoken to more than 45.50 lakh of children, schools, colleges. As a chief resource advisor and speaker for Internet of Mobile Association of India, he's presently executing the Safe Serving campaign, conducting seminars on cyber threats to children in digital world for students, teachers. Arvind sir is calling me. I'll take the call for a second. Hello. Isha, please do send the link again to everyone because people are facing problem in terms of joining because it's asking for the code. So please share to the registered members at least the link to be shared again. They're not able to join. So he's sensitizing them about the types of cybercrime, preventive measures to be taken while surfing the Internet Information Technology Act, and the remedial measures that can be taken if one is victimized by the cybercrime. He also addresses to the problems of the students and adults who seek further guidance on the same issues through www.rakshittandan.com, his official site, and the Facebook community page titled Rakshit Tandon, www.facebook.com/tandan.rakshit. So without further ado, I would request Rakshit sir to please help us to know more about the cyberspace and the cyber threats and preventive measures in this digital era. Thank you once again for being with us, and we are highly grateful to you, sir, for sharing your Thank time. you, ma'am. Thank you. Namaskar, all of you. I'll be apologizing for any disturbance if you get in the background because I'm at a terminal which I have to board a flight. But I have managed myself so that I can give my proper time to all of you. So thank you for having me, and lots of regard to Arvind sir because I have been fortunate to work with him at many operations and I've been knowing him since 2009. He's a wonderful officer and a lot of experience, especially in this domain of cyber. I remember we have solved some very amazing cases in his guidance in the past. So, my dear friends, I work as a cybersecurity evangelist, 30 years of experience. I'm currently also appointed as a consultant to CID Haryana Police. I'm working with Internet and Mobile Association of India. I'm also a faculty to BPRND Government of India, where I train all the state police academies on how to investigate cyber crimes. I've also been appointed as a faculty to the Judicial Academy, and this has been my role. Amazing journey of last 30 years. I've been to more than 70,000 schools and colleges in the country now. And today also in Bangalore, I was addressing almost 2,000 students in my 2 days trip. And it's amazing to know how digital world has enveloped everybody and made everybody a part of it. And especially in my country, India, where we see digital financial system growing immensely, right from a sabji wala vendor
to going to a 5-star hotel, you can buy anything with a QR code today. And in this domain, there is another threat which we have seen and continuously seeing, which is we are seeing. I'll just try to share my screen if I can. Good afternoon, ladies and gentlemen. Voting for the announcement. I think, can I share my screen? Okay. Oh, okay. Akshi, can you make sir co-host? No, I think. Yes, sir, I have shared the same. I'll just come back. You I can think share, please. Sir will rejoin. Neelam ma'am, can you introduce Arvind sir also in the meantime till the time Rakshit sir is joining? Okay. Arvind sir is also here, sir. Welcome, Yes, sir. yes. Thank you so much, Akshit sir. Sir Arvind sir, for joining us today. Dr. Arvind Chaturvedi sir is currently working as Superintendent Police Vigilance at Lucknow. Is a police officer with over 28 years of experience in various wings of Uttar Pradesh Police. He has served for long 15 years in UP Special Task Force, a premium organization combating organized crime and criminals. He was Superintendent of Police in Jalgaon, Ghazipur, Barabanki, and Sultanpur districts. He is recipient of UP Silver, DGP Silver, Gold, and Platinum Commendation Disc. Dr. Chaturvedi was awarded with the Police Medal for Gallantry by President of India in 2010 and also first bar to gallantry in 2020. Sir, we are privileged to have you today. President of India has awarded Dr. Chaturvedi with Police Medal for his meritorious services on the Republic Day, 26 Jan 2022. He is also recipient of awarded a salute to the extraordinary by Times of India in 2010. He has served in United Nations mission in Kosovo in 2004 and 5. In the mission, he was trained on maintenance and management of mobile switches at Alcatel University, France. He has done training of trainers program by London University. Dr. Chaturvedi is a national level resource person on electronic surveillance, cybercrime, and wildlife crime for National Police Academy, Hyderabad, Wildlife Crime Control Bureau, Bangalore Law School, CBI Academy, IIMS Lucknow, Pragya Income Tax National Academy, then telecommunication companies, academic institutes, and many central and state police academies. He is also Environment Crime Division, helped Environment Crime Division of Interpol Singapore, and he was invited by to Singapore for this to share his experience about the methodology of preventing, investigation, and prosecution of wildlife cases. He's passionate about community policing and has demonstrated on the ground unique social initiatives for marginalized sections of the society, pulling them out of generations of criminal activity to respectable, sustainable vocation under mission Kaya Kalp program in village Chainpurva in Barabanki. World Health Organization has made a short film on his successful endeavor. We are privileged to have you, sir, and thank you so much. So, Rakshit, sir, please, you can take over. Thank you very much. Thank you. So, namaskar, Arvind sir. Such an honor and pleasure to again meet you. I was just mentioning the audience that you have a wonderful contribution to this field, and not only to this field, also to the Hindi literature, the Sahitya, and so much, many more things goes. And I'll tell you the audience that I've been following sir's post since 2009. So though we have worked on many cases again, but when he was in STF in 2009, that was the first time I met him. And then since then, he writes so wonderful, and he has so much of contributions, not only to cyberspace, but also to the wildlife space. So thank you, sir. It's such an honor. And coming back, dear audience, we were talking about the cyber threats. So I was just about to share my screen and
just give you an insight exactly what are we facing today. So these are some figures which we are getting nationally. हम लोगों को 21 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक साल के अंदर, जनवरी 2022 से मई 2023 तक, और ये 21 लाख कंप्लेंट जो हैं हमारे साइबर क्राइम पोर्टल्स पे आई हैं। और अभी I4C के कुछ आंकड़े आए थे जो बताते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के, कि लास्ट ईयर में 10,300 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड का नुकसान हुआ है हमको, जिसमें 1127 करोड़ रुपए हम ब्लॉक कर पाए। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10%. So the figures are rising, the threats are rising, and the basic idea is, if you look at the threat level is increasing day by day. और जो major threats मुझे दिखाई दे रहे हैं, I'm been doing a lot of work with lot of cyber crimes cells. तो एक तो ransomware जो organization के लिए बहुत बड़ी threat है आज की तारीख में, एक ऐसा वायरस जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को क्रिपल कर देता है, डिजिटल किडनैपिंग कर लेता है, और उसके बाद वो उसके बदले में पैसा मांगता है। इसके साथ 2 घटनाएं आपने सुनी होंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के साथ ये घटना घटी, जो बड़ी घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें 200 करोड़ की फिरौती मांगी गई और 15 दिन तक सिस्टम सारे बंद रहे। इसका कारण ये था कि साइबर हाइजीन फॉलो नहीं की गई। डेटा ब्रीचेस इस समय सबसे बड़ी थ्रेट है। हम लोग साइबर हाइजीन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मोबाइल्स इजीली आजकल हैक हो रहे हैं। जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तब से हम देख रहे हैं कि हैकर्स भी बहुत एडवांस हो गए। ऐसे मैलवेयर्स पैदा कर लिए हैं कि आपके फोन्स के ओटीपी उनके पास अपने आप पहुंच जाते हैं, आपके फोन का डेटा उनके पास अपने आप पहुंच जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। अगर मैं थ्रेट्स की, ये मेजर थ्रेट्स हैं, अगर मैं इनको दिखाऊं आपको लाइव, तो ये देखिए आज की तारीख में जोमैटो जैसी कंपनी का डेटा हैक हो गया, 17 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, और इसमें इनका ईमेल और पासवर्ड चुरा लिया गया। उसके बाद हमने सुना कि आधार का 81 करोड़ लोगों का डेटा ब्रीच हुआ और इसको डार्क वेब पे बेचा गया। उसके बाद हमें दिखाई दिया कि बिग बास्केट जैसी कंपनी का 2 करोड़ हिंदुस्तानियों का डेटा ब्रीच हुआ, और इसमें भी उनका पासवर्ड मौजूद था, द पासवर्ड वाज स्टोलन। और ये डेटा जब डार्क वेब पे जाता है तो हैकर्स आर यूजिंग इट एज अ वेपन। तो आज से 10-12 साल पहले जब जामताड़ा शुरू हुआ तो बड़ी रैंडम कॉल्स आती थी, मैं एसबीआई से रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद हो जाएगा, जरा ओटीपी बताइए। और मैं 2 सेकंड बाद सोचता था मेरा तो एसबीआई में खाता ही नहीं है। आज जो कॉल आती है वो इतनी मैच्योर है। मिस्टर टंडन बोले हाँ हम फेडेक्स से बोल रहे हैं, आपका कोरियर आया, उसमें ड्रग्स पाई गई हैं, ये आधार नंबर आपका है, मैंने हाँ साहब, ये एड्रेस आपका है, मैंने हाँ साहब, ये बैंक अकाउंट आपका है, मैंने हाँ साहब, आपने कल इतने रुपए का ट्रांजेक्शन किया अपने बैंक से, मैंने हाँ साहब, हम अभी आपकी कॉल को पुलिस को कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए आप पे एक स्काइप पे वीडियो कॉल आ रही है। और ऐसा डर बैठा देते हैं कि नतीजा ये होता है कि अभी बैंगलोर के अंदर एक आईटी कंपनी के मालिक के 2 करोड़ 30 लाख रुपए चले गए इसी स्कैम के अंदर। He is a CEO of an IT company. बिट्स पिलानी के अंदर एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके 7.5 करोड़ रुपए इसी फ्रॉड में चले गए, बिट्स पिलानी। और गुड़गांव के अंदर एक आईटी इंजीनियर हैं, उनके 42 लाख रुपए इसी स्कैम में चले गए, ऑनलाइन स्कैम में। तो दिस इज हाउ, एंड लिसन टू मी, ये तीनों केस जो हमने दिखाया ये हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग थे। अब द कंसर्न इज वेरी सीरियस हियर कि आज हमारा डेटा वेपन की तरह यूज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी नहीं कर पाई, इनका डेटा ब्रीच हो गया। आपने देखा बोट नाम की कंपनी का 7.5 मिलियन पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ। ये बड़ी पॉपुलर कंपनी है आजकल, कई लोग इससे हेडफोन्स और स्पीकर्स खरीदते हैं। अब ये डेटा हैकर्स को मिल गया डार्क वेब से, तो अब दे आर वेपनाइजिंग द डेटा। तो आज की तारीख में अगर मैं थ्रेट लेवल को डिफाइन करूं बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो आज आपको जरूरत है साइबर हाइजीन की, और उस साइबर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को आपको अपने डिवाइसेस जो हैं वो अपडेटेड रखने पड़ेंगे। दूसरा, आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं कर सकते आज की तारीख में, वो लिंक मैलवेयर से लोडेड है। अभी अभी मेरे पास एक साइबर सेल से कॉल आया था, उनके फोन में एसएमएस फॉरवर्डर लगा हुआ है, यानी कि जितने भी ओटीपी उन पे आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हैकर के पास जा रहे हैं, और वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं, जस्ट फॉर द रीजन क्योंकि उनका जो वो है डिवाइस वो
मेलवेयर से अब वो है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी मेरे यहाँ एक कंप्लेंट आई थी जिसमें करीब 5,000 फोनों को हैक कर लिया गया। उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया और उस व्हाट्सएप मैसेज में ये कहा गया कि आपको एक csc.apk नाम की फाइल अपडेट करनी है। मैंने वो फाइल जब वायरस टोटल नाम के सॉफ्टवेयर पे चेक करी, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये वायरस टोटल नाम का एक सॉफ्टवेयर खोला और इस सॉफ्टवेयर पे मैंने वो एपीके फाइल जो उनको व्हाट्सएप पे भेजी गई थी csc.apk, मैंने जब उसे चेक किया तो उसमें 27 मेलवेयर निकले और मेलवेयर एंड्रॉइड में। और मेलवेयर की खासियत थी ट्रोजन एसएमएस स्पाई, ट्रोजन एंड्रॉइड बैंकर, ट्रोजन एसएमएस स्पाई। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का फाइनेंशियल इकोसिस्टम ओटीपी पे डिपेंडेंट है। ओटीपी एसएमएस में आता है और आप अपने फोन पे एक एपीके फाइल डाउनलोड कर चुके हैं। और ये एपीके फाइल आपको क्यों? क्योंकि आप पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। यू ऑल अंडरस्टैंड सीएससी का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर, भारत सरकार का जो जनधन योजना केंद्र है। और ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखाऊं, मैंने इसके ऊपर एक वार्निंग भी इशू करी थी बहुत दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। मैंने ये देखिए, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, ये मेरा एक छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट है रक्षित टंडन के नाम से, 47 फॉलोअर्स भी हैं मेरे पास। मैंने आज से कुछ साल पहले ये एक वीडियो भी डाला है इस पे हाथ जोड़ते हुए कि देखिए आपके पास एक मैसेज आएगा और ये मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे। इस मैसेज में लिखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर अपडेट करिए। ये देखिए, सीएससी से संबंधित न्यू अपडेट पाने के लिए ये ऐप ओपन करें। आज की तारीख में हैकर आपके फोन में घुसना चाहता है। और अभी अभी हमने आपको दिखाया कि एक एपीके फाइल कितनी खतरनाक हो सकती है, उसमें 27 वायरसेस लोडेड हैं। इसी प्रकार से आजकल ये लोग आपको लिंक भेज रहे हैं। ये देखिए, मेरे पास ये लिंक आया याहू मेल पे। हम पे एक बड़ी डरावनी मेल आती है कि मैं आपको अपनी मेल खोल के दिखा रहा हूँ, ऑडियंस देखिएगा ध्यान से, कि उस मेल में लिखा था रक्षित टंडन कॉपीराइट नोटिस, इंस्टाग्राम से हमें आपकी कंप्लेंट प्राप्त हुई है, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। अगर आपने अपील का बटन नहीं दबाया तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। एक आम आदमी इस मैसेज को पढ़ के जरूर डरेगा और ये अपील का बटन दबाएगा। मैंने इस अपील के बटन को कॉपी किया और वापस अपने वायरस टोटल की मदद ली। मैंने पूछा वायरस टोटल से कि भाई ये लिंक कैसा है, तो मैंने ये लिंक जो है कॉपी किया। देखिए, here's the link, here's the link. I said copy link और मैंने वायरस टोटल पे ये लिंक पेस्ट कर दिया। देखिएगा साहब, इसमें 6 खतरे पाए गए। खतरों का नाम बताया उसने, फिशिंग और मलेशियस। मलेशियस मतलब मेलवेयर से लेस। अब हम लोगों को ये समझना है कि ये मेलवेयर करता क्या है आजकल हमारे फोन पे। तो मैं बड़े सिंपल शब्दों में समझा दूं साहब आपको। ये जो मेलवेयर है ये बेसिकली मैं एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा परेशान कर रही है, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए, मेलवेयर्स क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, हमारे फोन से ओटीपी, कॉन्टैक्ट्स, फोटो गैलरी, कॉल लॉग्स और पासवर्ड्स, ये चीजें चुरा लेते हैं। तो अगर मेरे फोन में गलती से कोई मैलिशियस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे एसएमएस गए, कॉन्टैक्ट्स गए, फोटो गैलरी गई, कॉल्स गए। और अब इसमें खतरा क्या हो सकता है? हम लोगों की साइबर हाइजीन बहुत पुअर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फोन में बहुत पर्सनल डेटा रखते हैं। अभी मेरे पास एक बड़ी खतरनाक घटना घटी। एक कंप्लेंट आती है मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से मेरे पास। उसमें वो कहता है आके, पीड़ित जो 20 साल का स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है, वो आके कहता है कि साहब मेरे पास 46 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। ही इज 20 years old student, he is studying in a college, और उस पे एक इनकम टैक्स का 46 करोड़ का नोटिस आता है। पता चलता है उसके पैन कार्ड की जो तस्वीर है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। अभी भारत सरकार ने भी ये वार्निंग भी इशू करी थी और एक आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा है कि मेजर पैन कार्ड मिसयूज स्कैम आर अनफोल्डिंग एंड देयर मेनी केसेस आर बीन रिपोर्टेड। मैं सारे यूजर्स से कहना चाहूंगा
पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीजें फोटो गैलरी में नहीं रखी जाती हैं। इन्हें रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग करिए या अपने क्लाउड में रखिए। और आधार हमेशा मास्क रखिए। अपने फोन्स को अपडेटेड रखिए। भारत सरकार हर सेकंड आपको वार्निंग दे रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी 4 दिन पहले ये वार्निंग आई, हाई रिस्क वार्निंग। क्या था? आईफोन, आईपैड और मैकबुक को कृपया अपडेट रखिए। इट वॉज अ हाई रिस्क वार्निंग। ऐसी महीने में 4 वार्निंग्स आती हैं। तो प्लीज अपने डिवाइसेस अपडेट रखो। किसी लिंक पे क्लिक मत करो। अभी किसी ने सवाल भी पूछा कि अपना फोन कैसे चेक करें, तो भैया प्ले स्टोर पे जाइए और वायरस टोटल नाम के ऐप को डाउनलोड करिए। ये आपको फनी कैट नाम की कंपनी का मिलेगा, ये वाला। इसे डाउनलोड करते ही आप अपने फोन पे चलाइए, आपको इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी। रेड मतलब खतरनाक, ऑरेंज मतलब खतरनाक, ग्रीन मतलब सुरक्षित। तो अगर आपके फोन में कोई ऐसा खतरनाक ऐप पड़ा हुआ है तो उसे फौरन वहां से गायब करिए। तो कहने का मतलब ये है, एक तो समझ में आ गया, मैंने दोनों बातें बता दी। थ्रेट्स, एआई का आजकल इस्तेमाल आवाज स्कैम में भी हो रहा है। अभी ये पुलिस वाले का कॉल आता है एक बेचारे महिला के पास कि आपके बेटे को किसी गिरफ्तार कर लिया है क्राइम में। पीछे से उसकी आवाज सुनाई जाती है एआई के माध्यम से, और वो बेचारी महिला 1.5 लाख रुपए दे जाती है। तो एआई इज बीइंग मिसयूज्ड। डेटा थेफ्ट बहुत हो रहे हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, लोग मुझे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं, वैसे मैं अपने आप को 30 साल का स्टूडेंट कहता हूँ साइबर सुरक्षा में, क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूँ। बट लोगों ने ये नाम दे दिया है साइबर एक्सपर्ट का। तो मेरी एक ईमेल आईडी है पर्सनल। मैंने उस आईडी को जब चेक किया तो दिखाई दिया मुझे कि मेरा जो डेटा है खुद का, ये देखिए मेरी पर्सनल जीमेल का, ये 3 बार चोरी में पकड़ा गया है। किस किस चोरी में? आदित्य बिरला फैशन, कैनवा और रेल यात्री। यानी कि ये डेटा मेरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, यानी कि ये डेटा एक हैकर के पास है। इसमें आप देख रहे हैं मेरा पासवर्ड तक चला गया है। तो आज की तारीख में अपने सारे फाइनेंशियल और उस तरह के डेटा को आप लोग सिक्योर रखिए, अपने पासवर्ड चेंज करके रखिए, और अपने अकाउंट्स पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए, जैसे कि मैंने कर रखा है। ये मेरा जीमेल है। अब आप मेरी जीमेल की सुरक्षा देखिए, 2 स्टेप ऑन है, पास की ऑन है, सिक्योरिटी की ऑन है, ऑथेंटिकेटर ऑन है, और गूगल प्रॉम्प्ट ऑन है। मतलब मेरे खाते में घुसने के लिए तुम्हें 5 किलो का फतेह करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो थ्रू 5 हर्डल्स, then you can open my account. So you cannot hack my account only with the password, and that is called multi-factor authentication. तो आज की तारीख में जिस तरह के हम फ्रॉड्स देख रहे हैं, और खास तौर से इनकी पूरी नजर फाइनेंसिस पे है। तो देखिए, एक आपको ये फिशिंग्स दिखाई देंगी, नकली वेबसाइट, बिल्कुल स्पेलिंग सेम, गलत कर देंगे, 00kk.com, डिजाइन बिल्कुल सेम। ये लोग आपकी सिम को हैक कर सकते हैं जस्ट बाय आस्किंग यू टू सेंड एन एसएमएस फॉरवर्डर। आजकल ये यूएसएसडी कोड से भी कर रहे हैं। मतलब आपसे कहेंगे कि हम अमेजोन से बोल रहे हैं, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, ये नंबर डायल कर दो। उस नंबर के आगे स्टार हैश करके कुछ कोड लगा होगा, अगर गलती से डायल कर दिया आपकी सारी कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगी, और एक बार आपकी कॉल और एसएमएस फॉरवर्ड हो गए, आपका सिम गया। तो कस्टमर केयर ये भी बहुत चल रहा है। कस्टमर केयर के गलत नंबर डाल रखे हैं इन्होंने गूगल पे और फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आपको ये नकली मैसेजेस भेज रहे हैं, आपका बैंक आज बंद कर दिया जाएगा, केवाईसी नहीं हुई है, आप इसे क्लिक करो। आपको हॉस्पिटल में बुकिंग करानी है, एपी के फाइल डाउनलोड करो। आपका इनकम टैक्स का रिफंड आ गया है। आपका आज मतलब 3 चीजों का मेन इस्तेमाल हो रहा है, डर, लालच और लस्ट। ये देखिए, एपी के फाइल डाउनलोड करिए, आपका आईसीआईसीआई बैंक आज रात को बंद हो जाएगा। तो प्लीज ऑडियंस, 3 चीजों से बचिए आजकल। एक ये पुलिस वाले कॉल्स, ऑटोमेटेड कॉल्स आ रहे हैं, उसमें वो कह रहा है 9 दबाइए, 3 दबाइए, गलती से मत दबा देना। ट्राई से बोल रहे हैं आपके साथ, आपके नंबर किसी अपराध में पाए गए हैं। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। और तीसरा, शेयर ट्रेडिंग एप्स। मतलब अगर आप देखें तो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उन पे ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग इससे सुरक्षित रहें। बट दिक्कत वही है कि लोग देख नहीं पाते हैं इस तरह के वीडियो। हम लोग वो ज्यादा देखते हैं, मोए मोए टम टम एंड यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। अब आप ये वीडियो देखिए, ये हमने यूपी पुलिस के साथ तैयार किया था कि आजकल किस तरह से ट्रेडिंग एप्स, नकली ट्रेडिंग एप्स से लोगों को ठगा जा रहा है। तो
मैं चाहता हूँ कि ये जागरूकता लोगों में हो। अगर आपको ट्रेडिंग शेयर की करनी है तो प्लीज अपने बैंक के ऑफिशियल डीमैट अकाउंट्स में करिए, किसी थर्ड पार्टी को अपना हार्ड अर्नड मनी मत दीजिए। ये लोग आजकल बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं, इसमें शुरू में आपको पैसा देते हैं और फिर बाद में आपको ठग लेते हैं। तो ये मेन साइबर क्राइम्स हैं जो मैं आजकल देख रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम, पुलिस वाला, क्रेडिट कार्ड्स, उसके लिए तो बहुत आसान तरीका है, मैं भी वो यूज करता हूँ। मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मेरे को थोड़ी देर पहले मेरे को कॉफी खरीदनी थी, मैं गया, मैंने कार्ड से पेमेंट करी, मेरा कार्ड चला नहीं, बोला आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है। मैंने नहीं साहब, एक्सपायर नहीं हुआ है। मैंने फौरन अपना मोबाइल ऐप खोला, ऑनलाइन में गया, कार्ड को पहले ऑन किया, तब मेरा कार्ड चला। तो यानी कि मैं अपने मोबाइल से अपने कार्ड को ऑन और ऑफ करके रखता हूँ। ये भारत सरकार के आरबीआई के कहने पे सन 2020 में एक्टिवेट कर दिया गया था। लोग करते ही नहीं है और फिर कहते हैं हमारा कार्ड हैक हो गया। तो अगर मैं अपने कार्ड को अपने हाथ से ऑफ और ऑन कर सकता हूं तो कितनी सहूलियत की बात है ये। और मात्र 2 सेकंड लगते हैं ये काम करने में। तो मेरे पास सारे बैंकों के एप्स इंस्टॉल्ड हैं। आई विल ओपन माई ऐप, टर्न इट ऑन, डू द पेमेंट, एज सून एज पेमेंट इज फिनिश्ड आई विल टर्न इट ऑफ। तो अगर किसी ने मेरा कार्ड हैक कर भी लिया है तो भी वो मुझे 1 रुपए का नुकसान नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें। और लास्ट में सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने खातों पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो कंपलसरी रखें, पासवर्ड्स चेंज करते रहें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा रखें, अपने सारे डिवाइसेस अपडेट रखें, संचार साथी .gov.in, कभी भी फोन चोरी हो जाए यहाँ पे रिपोर्ट करें, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे यहाँ पे रिपोर्ट करें। आपको चेक करना है आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, यहाँ पे चेक करें। और आपको चेक करना है जो आप फोन खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं, उसका IMEI नंबर यहाँ पे चेक करें। ये सुविधाएं आपको भारत सरकार ने दी हैं। बाकी रिड्रेसल सर आए हुए हैं, सर से ज्यादा तजुर्बा किसी को नहीं है, वो आपको बताएंगे कि पुलिस को हम कैसे, किस प्लेटफॉर्म से, किस नंबर से रिपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, आधार की वेबसाइट पर आप कृपया अपने बायोमेट्रिक्स लॉक कर दीजिए। तो वहां पे एक बटन है लॉक अनलॉक, UIDAI.gov.in। जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग हैं, अपना बायोमेट्रिक लॉक रखिए, जब जरूरत पड़े तभी उसको अनलॉक करिए। और सारे अकाउंट्स पे डबल ऑथेंटिकेशन रखिए। एक वर्ड सीखिए मेरे से, जीरो ट्रस्ट। और जितने यंग बच्चे हमें सुन रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, आप लोग अपनी रिलेशनशिप्स को रियल रखिए, रील मत रखिए, मतलब वर्चुअल मत रखिए, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं। और हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहां बच्चों की तस्वीरों का मिसयूज होता है, उनकी चैट्स का मिसयूज होता है और उनको मेंटल पीड़ा दी जाती है। तो बी वेरी केयरफुल इफ यू आर गेटिंग इनटू एनी चैट्स एंड एनी वीडियो कॉल्स। And I think I have already taken more time, 5 minutes extra. But with this, thank you so It can much. take I'll more time, share. sir. It can take more time. It would be our privilege to listen from you. No, You but have- I will not I will not get into the time of Arvind sir. But dear students, I can also share my contact details. I've been doing some internship program for last 11 years, and it has become a flagship event. So we do free of cost internships with children, and we train. अभी समर में होके चुका है, हम लोग ये गुड़गांव पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हैदराबाद पुलिस, कई पुलिस के साथ कर रहे हैं। हम महीने भर के लिए बच्चों को लाते हैं और अपने यहाँ ट्रेन करते हैं। तो अभी कितने मेरा एज 2 ग्रुप जुलाई सर, मतलब कितने एज ग्रुप के बच्चों को ट्रेन करते हैं? we have 2 batches. One is for 9 to 12 and the second is for all graduates and postgraduates. So mainly we started with graduates, postgraduates and masters, but इस साल पहली बार हमने बच्चों का बैच बनाया समय की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। हम पे 15,000 एप्लीकेशंस आई और उनमें से हमने 1100 बच्चों को चुना और पूरे 1 महीने का फ्री प्रशिक्षण दिया। ये हम 11 साल से कर रहे हैं। और इस बार भी हर साल हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 2 या 4 ऑफिसर्स जरूर आते हैं। इस बार भी इंडियन एयरफोर्स से आए थे, इंडियन आर्मी से आए थे और साथ में बच्चे आते हैं। तो अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे, इसको GPCSSI कहा जाता है, गुड़गांव पुलिस साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप। तो ये एक फ्लैगशिप इवेंट बन चुका है। अभी मैंने जैसे इसके बारे में यहाँ डाला भी था, ये हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम था इस बार का, गुड़गांव एक सर साइबर थोड़ा पुलिस। सा, ओके,
And we train these students in the convoy of the police. I am the main trainer. I spend almost 1 month with them, and we train them on all the facets of cybersecurity. Whether you are from psychology background, IT background, forensics background, so we entertain all these students. We call them cyber warriors. और ये हम 11 साल से कर रहे हैं. So these are some initiatives which we are taking to create more and more cyber warriors. I've been very actively working with Uttar Pradesh Police since 2008 जब पहला cyber cell खुला था, और I've been doing a lot of investigations and helping them in a lot of investigations. So I know actually how the hackers work. So students, the audience who's listening to me, this is a very important message कि this is the need of the hour. This is a skill of the hour to understand cyber security. Don't think कि हम IT background के तभी कर सकते हैं. और दूसरा, आपको कानून के बारे में सर अभी बताएंगे. हमारा जो साइबर लॉ, जो नया कानून आया है, अगर आप लोग कभी भी कोई फेक आईडी बनाते हो या किसी को गलत मैसेज भेजते हो, ये आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स खराब कर सकता है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है. सो आई थिंक with this, I'll rest my presentation. I'm sorry for the disturbance at the airport because I was bound to have this flight. मैं और कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं अगर सड़क पे ऑनलाइन आता तो और ज्यादा डिस्टर्बेंस होता. Thank So you I for your thought to time. come और early. My flight. बिल्कुल पीछे से डिस्टरबेंस नहीं थी. Your voice was very clear and very चलिए, informative. so sir. nice. Thank you so much. And with this, I'll rest my presentation. And thank you, audience. If you have any quick question for me, I'll take it, because I have a case of different type of a fraud. Jayesh, so you can text me on my Instagram account. I will definitely connect with you. I'll share the websites. It is virustotal.com. I'll share it to everyone on the chat. One is this. The second one is haveibeenpawned.com. You can check whether your account is breached or not. The third is sancharsathi.gov.in. So these are three important websites. And you can follow me on Insta. This is rakshit.tandon. That's my Insta ID. And, and on FB, I'm called tandon.rakshit. All accounts are verified, so you'll not have any problem searching for me. And I'm giving you my email account as well. If you write a mail to me, I'll be connected. So with this, thank you so much for inviting me. And I'll be on mute. I'll be there around. I'll be connecting from my mobile now because I have to rush to my boarding gate. So till the time my flight doesn't take off, I'll be connected. So once again, thank you so much. Thank you Namaskar. so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Very informative. Thank you. Thank you so much. So without further delay, I would request Arvind sir to share his valuable information and guidance to all of us. We look forward, sir, from getting immense myths to be sorted out today and number of myths which we have. So, Definitely. And Thank thank you you, so Rakshit, much. for enlightening us on various threats and what is going on in the current world. आपने बहुत अच्छे तरीके से जो थ्रेट्स अभी चल रहे हैं और जो पर्सनल सिक्योरिटी की जा सकती है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी. मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटा सा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और उसी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा. तो मेरा ट्रस्ट ये है, मेरी आवाज आ रही है नीलम जी? हाँ जी सर. ओके. Yes, sir. Loud and clear. ओके. तो जैसा अभी रक्षित जी ने बिल्कुल केसेस के हिसाब से बताया कि केसेस कैसे हो रहे हैं, ट्रेंड क्या है, कहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है, मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनकी जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की कि हम जिस साइबर स्पेस में मूव कर रहे हैं वहाँ कहाँ खतरे हैं और क्यों खतरे हो जाते हैं. और हम कुछ खतरों की भी बात करेंगे. एज ए पुलिस ऑफिसर हम कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे. तो हमारा पहला सवाल ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इन साइबर स्पेस. हम साइबर स्पेस में मूव करते हैं तो हम पहले तो ये देखें कि साइबर स्पेस है क्या, साइबर स्पेस में कैसे हम मूव करते हैं.
तो ये मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूँ, अभी रक्षित ने बहुत से केसेस बता दिए। मैंने जितने भी केसेस रखे वो सब लखनऊ के ही रखे, कि कोई नार्कोटिक्स की टीम का कोई कॉल करता है लड़की को या लड़के को और उसे डराता है अरेस्ट हो जाएंगे, या कभी कॉल आता है कि आपके पार्सल में वीट्स हैं, ज़्यादातर ये कुरियर कंपनी से आते हैं। हॉलीडे पैकेज बहुत से लोग बुक कराते हैं, उसमें कॉल आता है कि आपकी टैक्सी कैंसिल हो गई है, उस कैंसिलेशन का क्लेम करने के लिए आप फलाने QR कोड को स्कैन कीजिए। रेप विक्टिम्स में इस तरह के बहुत से केसेस अभी रक्षित ने बताए हैं, तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपका अभी पंच लाइन पढ़ रहा था कि स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। मैं उसको फ्लिप करना चाहता हूँ कि इट शुड बी स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ। कि अगर आपको मालूम होगा कि थ्रेट्स क्या हैं, तभी आप सेफ रह पाएंगे। तो बी अवेयर एंड अलर्ट एंड स्टे सेफ, ये मैं कहता हूँ। तो हम बात अपनी शुरू करते हैं कि व्हाट इज साइबर स्पेस। हम इतनी बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो हम उसकी जो मूल तत्व है उसकी बात करें। साइबर स्पेस क्या है? तो साइबर स्पेस एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जहां हम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। और आप मार्क कीजिए कि हम इस पूरे साइबर स्पेस में केवल 4 काम करते हैं। हम डेटा को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और एक्सेस करते हैं। ये 4 काम हम करते हैं, और इन्हीं किसी काम में हमारे साथ धोखा होता है। इसके यूजर कौन है? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइसेस जो इंटरैक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं इलेक्ट्रॉनिकली और एक इंटरकनेक्टेड डोमेन बनाती हैं। ये हमारा साइबर स्पेस है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जो भी काम हम डिजिटली करते हैं, चाहे हम वेबसाइट पे जाते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाते हैं, ईमेल सिस्टम है, ये सारी चीजें साइबर स्पेस में इंक्लूडेड हैं। अब एक वर्ड दूसरा आता है साइबर सिक्योरिटी। हम लोग ये समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो कंपनियां, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे हैं, वही साइबर सिक्योरिटी है। लेकिन अभी आपको रक्षित जी ने बताया कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो भी एक एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क प्रोग्राम्स, डेटा from unauthorized access, damage, theft, or any other form of digital disruption. This is called cyber security. और इसके लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस जरूरी हैं, पॉलिसीज जरूरी हैं और ह्यूमन विजिलेंस जरूरी है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारा डोमेन टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है। हमारा डोमेन डायरेक्टली गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाना नहीं है। हमारा डोमेन इंडिविजुअल विजिलेंस है। जो ह्यूमन विजिलेंस है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें और हम कैसे उससे बचें, ये हमें दिखाने की आवश्यकता है। तो नटशेल में अगर हम कहें कि साइबर स्पेस में सुरक्षित रहने के लिए क्या जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के लिए, बी अवेयर एंड अलर्ट। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जैसे टाइगर अलर्ट रहता है, जंगल का राजा है, लेकिन हर समय वो अलर्ट रहता है, ऐसे ही हमको भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अलर्ट हैं तो बहुत सी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आता हूं साइबर क्राइम पर। साइबर क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट आर प्राइमरी टूल्स और ए टारगेट। ये हमारा साइबर क्राइम हो गया। कैसे होता है साइबर क्राइम? अनऑथराइज एक्सेस, जैसा अभी रक्षित जी ने कहा कि आप अपने ओपन लूप होल्स छोड़ देते हैं अपने सिक्योरिटी सिस्टम में और अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, चाहे वो SMS के माध्यम से हो या SMS फॉरवर्डिंग से हो या आपके सिम के एक्सेस से हो, आपके मोबाइल के एक्सेस से हो। यूज और मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद मैलिशियस इंटेंट। अगर हमारे पास कोई हमारी डेटा या इंफॉर्मेशन मैलिशियस इंटेंट से ले रहा है और उसका दुरुपयोग आगे चल के कर रहा है, तो भी हम कहते हैं कि साइबर क्राइम हुआ। क्या होता है साइबर क्राइम में? various techniques and technologies to commit offenses such as hacking, identity theft, fraud, spreading malware, phishing, cyber stalking, online harassment and many more। आज तो नए नए तरीके के साइबर क्राइम्स आ गए हैं जिनसे निपटना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।
हम एक थोड़ी साइकोलॉजिकल चीज पर भी आपका ध्यान लाना चाहेंगे कि ये किसके साथ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है. Why can target individuals, business organization or even governments, and its motives can range from financial gain to harm reputation to political activism to espionage to settle personal scores. बड़ा वाइड रेंज है. ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए किया जाता हो. बहुत से साइबर क्राइम ऐसे हैं जो सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कुछ लोगों को करके, तो इसलिए भी साइबर क्राइम होता है. ये देखने की जरूरत है. हम कैसे इससे प्रोटेक्ट करें. Government, law enforcement agencies, cyber security professionals work to combat cybercrime by implementing security measures, developing laws and regulations, and investigating and prosecuting the offenders. ये तो हमारा गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया कि हम पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं. और इसके अलावा करना क्या है. Important for individuals and organizations to be vigilant, adopt good cyber security practices, and stay informed about emerging threats and protect themselves against cyber criminal activities. मैं अगर यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूं कि हमारे जितने लोग हम लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, 100% उसमें लैपटॉप्स में कोई ना कोई एंटीवायरस पड़ा होगा. लेकिन हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें हम कोई एंटीवायरस नहीं डालते, जबकि मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस अवेलेबल है. तो इस तरह की जो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे उसको बचा सकते हैं. अब जो बात मैं कह रहा था कि लोग आखिर क्यों ससेप्टेबल हैं साइबर स्पेस में क्राइम के लिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हम जब गाड़ी सीखते हैं, इवन साइकिल सीखते हैं, तो कितना एफर्ट करते हैं, कितने लेवल्स होते हैं जब आप रोड पर स्वयं गाड़ी चलाना शुरू करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंफॉर्मेशन हाईवे है, जहां हम टेलीफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वहां हमारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती. अभी हम आपसे कहें कि फलाना ऐप बहुत अच्छा है, आप केवल हमारी बात पर विश्वास करके उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे या लेंगी और उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे. तो ये जो हमारी इग्नोरेंस है, यूजर की इग्नोरेंस है, ये परपिट्रेटर्स को, क्रिमिनल्स को साइबर स्पेस में मदद करती है थ्राइव करने में. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें समझना चाहिए. और इसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अधिक सुरक्षित रह सकते हैं. मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है साइबर क्राइम कमिट होने का, वो हिप्नोटिज्म है. कोई ऐसा साइबर क्राइम नहीं होता जहां पर व्यक्ति चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही हिप्नोटाइज ना होता हो. आपने भी रक्षित जी की बात सुनी कि कॉल आया कि आपका लड़का रेप में पकड़ गया है और उसको वो सीधा साधा लगता है, बाकी 3 लड़के तो बहुत बदमाश हैं, उसको छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपए आप दे दीजिए तो केस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. ये क्या है? हिप्नोटिज्म है. घबरा गई महिला या पुरुष, घबरा गया, उसने अपने लड़के को कॉल करके नहीं पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, तुम सेफ हो कि नहीं हो, ये सवाल नहीं किया. अभी यहाँ लखनऊ में एक केस हुआ एक बुजुर्ग महिला के साथ कि उनसे कहा गया कि आपका लड़का, अच्छा, और साइबर क्रिमिनल खुद ही पूछते हैं उनसे, आपका बेटा कहाँ है, आपके बेटे का क्या नाम है, वो खुद ही पूछते हैं और उसके बाद फिर स्टोरी बनाते हैं. उन्होंने कहा मेरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में है. उन्होंने कहा इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, उसका झगड़ा एक गोरे लड़के से हो गया है जिसको उसने मार दिया है, उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट आ गई है, तो उसके इलाज के लिए तुरंत 2,80,000 रुपए की जरूरत है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद. और उसने वो पैसे उन्होंने भेज दिए. उन्होंने अपने लड़के को कॉल करना प्रेफर नहीं किया क्योंकि इतना डरा देते हैं, धमका देते हैं. दोबारा कॉल आया कि लड़के की डेथ हो गई है, अब 7 लाख रुपए और चाहिए. वो अपने अपार्टमेंट के नीचे बैंक में आ गई. जब बैंक मैनेजर से बताया तो उन्होंने कहा कि बहन जी पहले अपने लड़के से बात तो कर लीजिए, लड़का वॉज हेल इन हार्टी इन हिज कॉलेज. तो ऐसी जो हिप्नोटिज्म है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइबर क्राइम की हैपनिंग में. और ये हिप्नोटिज्म मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट, कुछ दिन और कुछ महीनों तक भी हो सकता है. जो इंश्योरेंस फ्रॉड्स होते हैं वो महीनों महीनों चलते हैं. वो फ्रॉडस्टर आपको कॉन्फिडेंस में रखता है कि अब आपसे 42 लाख रुपए ले चुका है,
अब आप अगर इतना और दे देंगे तो आपको मिला के इतने पैसे वापस मिलेंगे, कभी आरबीआई का लेटर आएगा, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आएगा, इनकम टैक्स का लेटर आएगा, और वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे ओरिजिनल आरबीआई के लेटर्स होते हैं। सील होती है, नीले रंग की कागज होगा, उस पर गोल्डन सील लगी होगी। अभी जो बात हो रही थी कि हम बहुत से पहले जो थ्रेट्स, जो साइबर क्राइम्स होते थे, वो एल्योरमेंट के कारण ज्यादा होते थे। आपकी लॉटरी निकल आई है, आपका इनाम निकल आया है, आपने गाड़ी जीत ली है, इस तरह के क्राइम्स ज्यादा होते थे। लेकिन धीरे धीरे साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया कि इतने दिनों, 8 साल 10 साल में लोग अब ये समझ गए हैं कि ये अब ट्रिक काम नहीं करेगी। तो उन्होंने एक जो नया ट्रिक अपनाई है, उसमें 3 फैक्टर्स हैं: पैनिक, थ्रेट एंड फियर। पैनिक किस तरह का है कि पैनिक है कि आज रात 8 बजे आपकी बिजली काट दी जाएगी, आपका बिल पेमेंट नहीं हुआ है। और ये कब आएगा मैसेज? फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग आएगा, जब संडे को ऑफिस बंद होगा। तो पहला एक फैक्टर हो गया पैनिक का, कि आपको कोई पैनिक ऐसा कर दिया जाए कि आप कंप्लाई करने लगे बड़े आसानी से, हिप्नोटाइज हो जाएं। जो दूसरा है वो थ्रेट है। थ्रेट है, अरेस्ट का थ्रेट है, जो सबसे ज्यादा। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक महिला का, दिल्ली की बुजुर्ग महिला हैं, जिन्होंने करीब 83 लाख रुपए खो दिए अपने डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में। तो वो पूरी बात खुद बता रही हैं कि वो, उन्होंने हमको जिस तरह से कहा हम वैसे वैसे करते चले गए। अपनी एफडी तोड़वा ली हमने बैंक से। बैंक मैनेजर हमसे पूछा कि बहन जी आप इसको क्यों तोड़वा रही हैं, तो प्री मैच्योर है अभी। लेकिन हमने उनकी एक नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि एक थ्रेट हमारे मन में था कि हम या हमारे बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे। और एक फियर है, फियर बदनामी का फियर है। कहीं कहीं पर वो थ्रेट करते हैं कि आप बदनाम कर दिए जाएंगे, जैसा रक्षित जी अभी बता रहे थे कि आपकी, उन्होंने एड्रेस बुक कॉपी कर ली। एड्रेस बुक कॉपी करने पर वो आपको पिन पॉइंट करते हैं कि अब अगर आपने ये नहीं दिया तो हम विनय मामा जी, जो आपके एड्रेस बुक में विनय मामा जी के नाम से नाम लिखा हुआ है, उनको सूचित कर देंगे, बुआ जी को बता देंगे, मामी को बता देंगे। वो आपको इस प्रकार से थ्रेट करते हैं। और जो एक और इसके साथ फैक्टर जुड़ जाता है, वो ग्रीड का जुड़ जाता है, जहां पर हम पैसे के लालच में, फ्रॉड के चक्कर में पड़ते चले जाते हैं। आपने अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड सुना होगा कि आप पैसे दुगने कीजिए या पैसे 2.25 गुने कीजिए, तो उसके पैसे मिलते भी हैं वास्तव में। आपने 1,000 रुपये लगाए, आपको 2250 रुपये अगले दिन मिल गए। आपने 3,000 रुपये लगाए, फिर आपको मिल गए। ये जब अमाउंट बढ़ता चला जाता है एक लिमिट के बाद, तो वो आदमी इलोप कर जाता है। तो ये जो फैक्टर है, इससे हमें सावधान और बचने की जरूरत है। क्या कहते हैं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है। तो अगर कोई फ्री में आपको ऐसी चीज दे रहा है जो बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है, तो वहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमने अपने अनुभव के आधार पर ये देखा कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ये मुख्य रूप से 4 कारणों से होते हैं। जो इसके कैटेगराइज अगर इसको करें हम, तो ये 4 कारणों से होते हैं। जो पहला कारण है वो टीज या मिस्चिफ या डिस्टरप्ट के कारण है, कि हम किसी को टीज करना चाहते हैं, मिस्चिफ करते हैं या डिस्टरप्ट करते हैं। और ये इतना छोटा सा क्राइम है कि ये इंडिविजुअल से लेकर पूरे देश के खिलाफ हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स डिफेस कर दी गई, वो सारा इसी का उदाहरण है। या किसी व्यक्ति को टीज करना, किसी इंडिविजुअल को टीज करना, वो भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है और पहली कैटेगरी में फॉल करता है। मैं अभी आगे आऊंगा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन था और क्या समस्याएं हैं। जो दूसरा है, टू हार्म प्रोफेशनल राइवल्स। ये बहुत तेजी से सोसाइटी में बढ़ रहा है कि हम अपने राइवल्स को तंग करने के लिए साइबर क्राइम की मदद ले रहे हैं। थ्रेट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी है टू हार्म कैरेक्टर और रेपुटेशन। मोस्टली ये महिलाओं के साथ होता है, या कोई मैनेजर कहीं का स्ट्रिक्ट आ गया, कोई ऑफिसर स्ट्रिक्ट आ गया, उसके खिलाफ भी कैरेक्टर एसेसिनेशन के केसेस होते हैं। एंड लास्टली टू गेन मनी। जो सबसे बड़ा डोमेन है साइबर क्राइम का, वो है जहां पर पैसा गेन करना होता है, वो सबसे बड़ा डोमेन है। मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में अगर जाऊं तो आपको ध्यान होगा 66A 66A एक सेक्शन हुआ करता था IT एक्ट 2000 में, जहां
ऑफेंसिव मैसेजेस भेजने के लिए पनिशमेंट था, लेकिन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको रिपील कर दिया गया इस सेक्शन को कि इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो अब हमारे पास इसको रोकने के लिए सीधे सीधे कोई सेक्शन आईटी एक्ट में नहीं है, हमें आईपीसी का या बीएनएस का सहारा लेना होगा, जहां हम इसको हैंडल कर सकेंगे। इसी तरीके से प्रोफेशनल राइवल्स को हार्म करने के बहुत ही क्रिटिकल केसेस हम लोग के सामने आते हैं, जहां प्रोफेशनल कंपनीज, रेड हैट आप जानते होंगे यूएस की कंपनी है, लाइनेक्स पे काम करती है, ट्रेनिंग दिलाती है, इसके दो राइवल्स के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए साइबर क्राइम का इस्तेमाल किया गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बहराइच में, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बहराइच, वहां पर एक डॉक्टर को थ्रेट मिला, चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, उसको थ्रेट मिला व्हाट्सएप पर कि, और इस तरह का थ्रेट था जैसे किसी मुस्लिम ने भेजा हो कि जुमे की रात को भाई आएगा और तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जाएगा, तुमने हमारे न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया, इस तरह का थ्रेट आया। उसकी जब कंप्लेंट हुई, इंटरनेशनल नंबर, दुबई के नंबर से मैसेज आ रहा था, दुबई के नंबर को जब गेटवे पे स्कैन कराया गया तो मालूम पड़ा कि वो लखनऊ से इशूड एक नंबर है। लखनऊ में जब उस कांटेक्ट किया गया तो मालूम पड़ा वो एक ट्रेवल एजेंट का नंबर है। ट्रेवल एजेंट जो लोग 2 दिन 3 दिन के लिए सऊदी या दुबई जाते हैं उनको टेम्परेरी नंबर के रूप में दे देता था, और वो नंबर बहराइच के एक दूसरे डॉक्टर के पास मिला जो पिछले हफ्ते ही 5 दिन के लिए दुबई गए हुए थे। तो एक राइवल ने अपने कंटेम्परेरी डॉक्टर को थ्रेट करने के लिए ये सारा प्रयास किया। तो ये सारे भी साइबर क्राइम बड़े पॉपुलर हैं, जो केवल मनी गेन करने के लिए नहीं है, साइकोलॉजिकल वार है, टग ऑफ वार है, इसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हार्म, रेपुटेशन हार्म करने का है, उसमें मोस्टली हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सफर करती हैं इसको। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आज के वेबिनार का जो एक मेजर पर्पस है कि हम एजुकेट करें लोगों में ये संबल दें, ये विश्वास दिलाएं कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना या कोई घटना होती है तो पुलिस उनके साथ है, और पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि उसको वो जरूर हैंडल कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट के साथ एक बात और साझा करना चाहूंगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि डिजिटल वर्ल्ड में हम संपर्क बनाने में बड़े कैजुअल होते हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। फिजिकल वर्ल्ड में हम उसी से स्माइल एक्सचेंज करते हैं जिसको हम जानते हैं। वो कोई भी हो सकता है, हमारे दोस्त का भाई हो सकता है, वो हमारे दोस्त की माँ हो सकती है, हमारी चाची की बहन हो सकती हैं, कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो हमारे जेहन में है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में एक अलग अजब सा पागलपन है कि हम सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो दिखने वाला पुरुष महिला है, महिला दिखने वाली पुरुष है, वो कौन है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और यहीं पर हमारे साथ धोखे की शुरुआत होती है। हम अनावश्यक के लिए, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, उससे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम कॉमन मैन है, हमको स्वीकार करना चाहिए, हम सेलिब्रिटी नहीं हैं कि हमारे साथ हर आदमी जुड़ना चाहेगा, इसलिए भी हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो रक्षित जी ने भी इस बात को बताया कि ड्यूरिंग क्लोज एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप वी फॉरगेट टू सेफगार्ड अवर डिजिटल क्रेडेंशियल। ये जो जीरो ट्रस्ट की बात अभी रक्षित जी कर रहे थे, मैं उसी को दूसरी तरीके से कह रहा हूं कि हम कभी भी किसी का, कोई कितना भी घनिष्ठ मित्र ना हो, उसका टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करते। टूथब्रश हम अपने ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो डिजिटल क्रेडेंशियल हैं वो हमको खुद अपने इस्तेमाल करने चाहिए। जब हमारी दोस्ती खास करके अपोजिट सेक्स में बहुत ज्यादा होती है तो हम नजदीक चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम सारे बैरियर्स तोड़कर बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएं और हमारे कोई भी हमारी दूरी न रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शंस देता है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो आपको सिक्योरिटी के बाकायदा ऑप्शंस देता है कि आप किससे जुड़ना चाहते हैं, कौन आपका मैसेज देखे, ये सारी बातें आपको बता सकते हैं। टू गेन मनी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डोमेन है साइबर क्राइम का, क्योंकि ये मैं कहता हूं इसे कि आईईडी की तरह है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की तरह से है, जहां पर
जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आईईडी है, ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है कि किसी भी तरीके से आपको झांसे में फंसाया जा सकता है, आपको धोखा दिया जा सकता है अलग अलग तरह की मोडस ऑपरेंडी से। एन नंबर ऑफ इसमें क्राइम्स हैं, मैं सबके बारे में डिटेल से नहीं जा सकता हूं अभी, लेकिन कुछ जो बिल्कुल नए टाइप के क्राइम्स हैं उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। OLX पर जो सेल्स हैं वो एक बड़ा कॉमन क्राइम है आजकल, यहाँ पर आर्मी या एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में एक आदमी आता है और बताता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं अपना सामान बेचना चाहता हूँ, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और पैसा ट्रांसफर करते हैं, जबकि वो पूरी तरह से फेक होता है। इंश्योरेंस फ्रॉड बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इनसे बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि IRDA ने बहुत सा डेटा पब्लिक किया है जिसके कारण आपके पास कॉल्स आते हैं और उस कॉल्स के चक्कर में आप फंस जाते हैं। मेट्रो मनी फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मेट्रो मनी का डेटा लीक होता है और कोई आदमी आपको ल्योर करता है, आपसे पैसे उगाही करता है और उसके बाद आपको धोखा देके चला जाता है। एक नए तरह का क्राइम रिसर्च पेपर का है। हमारे जो आज जुड़े हुए वेबिनार में स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल रिसर्च के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको आप डबल चेक करके तभी उस पर रिसर्च पेपर भेजने का मन बनाइए, क्योंकि इस तरह के बहुत से थ्रेट्स आ रहे हैं, बहुत से क्राइम्स हो रहे हैं जहां आपके साथ थ्रेट हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। अभी हनी ट्रैप के बारे में भी रक्षित जी ने बात की थी, मैं थोड़े से विस्तार से आगे बात करूंगा जब मैं सेक्सटॉर्शन की बात करूंगा। जो आज जो बहुत बड़ा क्राइम समाज के सामने आ गया है उसको हम सेक्सटॉर्शन कह रहे हैं, जहां पर एक अननोन आदमी आपको वीडियो कॉल करता है, आपको ल्योर करता है, लड़की होती है मोस्टली या लड़का हो सकता है अगर महिला कॉल उठाती है, लड़की होती है, आपको ल्योर करती है, आपको ब्रेन वॉश करती है और वो आपकी इनकन्वीनियंस समझती है कि आप फैमिली में हैं, आप उससे अकेले बात नहीं कर सकते, तो आपको वॉशरूम में पुश करती है कि आप वॉशरूम में आइए जहां हम अकेले बात कर सकें। वो अपने आप को अनड्रेस करती है, आपको अनड्रेस करने पे मजबूर करती है और 30-40 सेकंड में ही आपको समझ में आता है कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उस 30-40 सेकंड में वो रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसके बाद फिर आपको वो या उसके बिहाफ पर कोई पुलिस वाला बन के, कोई वकील बन के आपके साथ पैसा मांगता है, आपसे एक्सटॉर्शन करता है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला लेवल है, जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी ने आपका फिल्म बना ली आपकी और आपको थ्रेट करने की कोशिश की, यहाँ पर मैक्सिमम वो आपके बारे में जान सकता है तो ट्रू कॉलर से जो डिस्प्लेड नाम है वो जान सकता है, इसके अलावा जानकारी नहीं जान सकता। लेकिन वो क्या करता है कि सेकंड लेवल में आपको ले जाता है, सेक्सटॉर्शन के सेकंड लेवल में आपसे कहता है कि आपकी क्लिप मेरे पास है, आप कहते हैं नहीं मेरी कोई क्लिप आपके पास नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आपने ये गलती की है और आपकी क्लिप बनी है, तो वो क्या करता है आपको क्लिप भेजता है। आप घबराहट में, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि क्या क्लिप बनी है, आप क्लिप पे क्लिक करते हैं और वो वास्तव में एक मैलिशियस लिंक होता है और आपकी एड्रेस बुक वो कॉपी कर लेता है और अब दूसरी बार कॉल करता है तो आपके एड्रेस बुक के नाम पढ़ता है कि अब मैं इसको क्लिप भेजूं, इसको बताऊं कि आपने इस तरह का किया है, देन यू आर अंडर रियल प्रेशर। और ज्यादातर ये एजेड लोगों के साथ इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं, यंगस्टर के साथ भी हो रही हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि कोई भी अननोन नंबर से अगर आपके पास वीडियो कॉल आता है तो पहली बात तो आप उठाएं नहीं, अगर उठाते भी हैं तो आप जो मोबाइल का कैमरा है उसको आप छत की ओर कर दें, ऐसे कर दें जिससे कि सामने वाले को कुछ दिखाई न दे और आपको उसकी आवाज केवल सुनाई दे। तो इस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये बहुत तेजी से फैलता हुआ अपराध है। अब लास्टली मैं कहना चाहूंगा, डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही थी, तो डिजिटल अरेस्ट काम की कोई चीज नहीं है, कानून में कोई चीज नहीं है डिजिटल अरेस्ट, लेकिन डिजिटल अरेस्ट इस समय बहुत पॉपुलर क्राइम हो गया है। रिटायर्ड लोगों के साथ खास करके एक कॉल आता है, वो कॉल चाहे फेडेक्स से हो सकता है, ट्राई से हो सकता है, इनकम टैक्स से हो सकता है, बिजली विभाग से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, पुलिस वाले का हो सकता है, बाकायदा उसमें सीनियर ऑफिसर की यूनिफॉर्म होगी जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं,
इंस्पेक्टर का डिजिग्नेशन लिखा है, यूनिफॉर्म डीआईजी के पहने हुए है, लेकिन क्योंकि आप हिप्नोटाइज हैं इसलिए आपका ध्यान नहीं जाता उस चीज पर, और वो आदमी आपको ये बताता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं, आप इस परेशानी से निकल सकते हैं, बहुत थोड़े से पैसे खर्च करने पे निकल सकते हैं। और मजे की बात वो कहता है कि आपके पास जितना भी पैसा है उसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये सही पैसा है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है। वो तमाम बड़े अपराधियों के नाम लेगा कि आपका नाम इस फाइल में भी आ गया है, इसलिए आपको अपना सारा पैसा क्लीन कराना होगा, और उस नाम से वो सारा पैसा किसी अकाउंट पर ट्रांसफर कराता है और वो पैसा आपके हाथ से चला जाता है। यहाँ ऐसे केसेस हैं जहां पर लोगों ने बैंक में जाके अपनी एफडीज तोड़वा ली, सारा पैसा अपना करोड़ों रुपए, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 80 लाख 85 लाख, इसके तमाम केसेस हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर केसेस ये पढ़े लिखों के साथ, इतना पैसा भी उन्हीं के पास होता है, पढ़े लिखे लोगों के साथ हैं। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1 दर्जन डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, या उनके पेरेंट्स के साथ ये घटनाएं हुई, जहां पर पैसा चला जाता है तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि पहला काम ये है कि आपको वेरीफाई करना है। जो कॉल आ रहा है, पहले तो ये मानिए कि 99% वो फ्रॉड है। अगर आपको लगता भी है कि उसमें कोई तथ्य की बात है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको आप वेरीफाई कीजिए। आपके लड़के के बारे में कहा जा रहा है, आपकी लड़की के बारे में कहा जा रहा है, आपके हस्बैंड के बारे में कहा जा रहा है, तो आप फोन काटिए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए। वो आदमी, ऐसे ऐसे केसेस हैं नीलम जी की उसमें 1.5 दिन 2 दिन तक वीडियो कैमरा ऑन है, वेब कैम पर उस टारगेट को रखा गया डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, कि आप सोएंगे तो भी कैमरा ऑन रहेगा, चार्जर पे लगा दीजिए कि कैमरा बंद नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ऐसा किया जाता है और खाते से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो फिर से प्ले कर रहा हूं, और ये मेरे घर का ही वीडियो है, और मैं कहता हूं कि स्टे सेफ के लिए शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर आप शेयर करेंगे, ऐसे लोग जो डिजिटल अरेस्ट में फंसते हैं वो शेयर नहीं करते, अगर आप शेयर करेंगे तो जरूर आपकी समस्या आधी हो जाएगी। तो ये देखिए, चिड़िया और चिड़िया का बच्चा है जो दाना खिला रही है और अब कितने अच्छे तरह से शेयर कर रही है उसके साथ। तो ये शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर हम अपने परिवार में अपने मित्रों के साथ शेयरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। हमने एक समरी बनाई है कि जो साइबर क्राइम्स हैं, वो हमारे जो सेक्शंस हैं, हमारे पास सभी तरह के जितने भी तरह के क्राइम्स हैं वो सभी हमारे पास उसके आईपीसी और जो साइबर क्राइम है उसके सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन साइबर लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसमें हर चीज का, छोटी से छोटी जो अपराध हैं उनको कवर करने का प्रयास किया गया है, और हमें निश्चित रूप से इससे बहुत मदद मिलती है जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन नटशेल, जैसे रक्षित जी ने कहा, नेवर क्लिक ऑन ए लिंक sent by unknown through email, WhatsApp, Facebook, etc. Never install any app on someone's advice. ये AnyDesk आपको इंस्टॉल करा देते हैं, कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल करा देते हैं जिससे रिमोटली आपकी डिवाइस को वो एक्सेस कर सकते हैं, तो इससे बचने की जरूरत है। वेरीफाई थ्रू थॉरोली बिफोर गोइंग फॉर एन ऑनलाइन डील ऑन OLX। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई आदमी फर्नीचर बेच रहा है तो कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है वो। आप बैंक में जाके वो अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए, कोई अकाउंट किसके नाम से है, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। नेवर अपडेट केवाईसी ऑनलाइन, कोई भी बैंक ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करने के लिए आपसे नहीं कहता है, प्लीज डोंट डू इट। एंड नेवर स्कैन QR कोड सेंट बाय अननोन पर्सन, क्योंकि QR कोड इज मेड फॉर मेकिंग पेमेंट, नॉट फॉर रिसीविंग पेमेंट। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस समय चल रहा है कि QR कोड हम आपको भेजते हैं कि आप इसको स्कैन कर दीजिए तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, जबकि उल्टा होता है कि आप QR कोड UPI से कनेक्टेड होता है, हम उसमें अमाउंट भरते हैं और वो पैसा हमें मिल जाता है। तो इससे बचने की जरूरत है। अब आखिरी की स्लाइड्स में हम ये बताना चाहेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है तो हमें करना क्या चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत सरकार ने बहुत विचार विमर्श के बाद देखा कि लोगों के करोड़ों रुपए चले जा रहे हैं,
तो बहुत से संगठन भारत सरकार ने अपने सेंट्रली MHA के अंतर्गत बनाए हैं। I4C उसमें से एक कमांड सेंटर है जहां से सारी चीजों की मॉनिटरिंग होती है, और वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये आपको अपने मोबाइल में जरूर सेव करके रखना चाहिए, 1930। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो निश्चित रूप से आपको 1930 पर कॉल करना चाहिए और आपको अपनी कंप्लेंट नोट करानी चाहिए। इससे क्या होता है देखिए, 1930 में 2 वर्टिकल्स हैं सीधे सीधे। एक और भारत के जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इससे 24/7 जुड़े हुए हैं, और दूसरी ओर सारे पुलिस थाने इससे जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ, आप मान लीजिए, मैं उदाहरण ले रहा हूं कि मैं HDFC बैंक का कस्टमर हूं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मेरे मैसेज में आया कि मेरा बैंक से निकाला हुआ पैसा कैनरा बैंक में चला गया। तो जब हम 1930 पे कॉल करते हैं तो वो कैनरा बैंक में हमारा उस खाते में जहां पैसा हमारा गया है, उस पैसे पर होल्ड लगा देते हैं। तो हमारा पैसा कम से कम फ्रॉडस्टर निकाल नहीं पाता है, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पैसा हमारे अकाउंट में वापस करा सकती है। लेकिन अगर वो पैसा एक बार निकल जाता है तब उसे वापस ले आ पाना एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, कठिनाई है, इन्वेस्टिगेशन की कठिनाई है। इतने ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसे वापस नहीं आते। जो अभी हमने बनारस का केस बताया, 2,32,00,000 रुपए का, उसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए, पैसा निकल जाने के बाद भी बरामद हुए उस गैंग को पकड़ने के बाद। तो लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर आपके साथ दुर्भाग्य से इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आपको तत्काल 1930 पर कॉल करना चाहिए। पहला काम, ना अपने किसी मित्र को कॉल कीजिए, ना पुलिस का संपर्क ढूंढिए, ना थाने जाइए, ना बैंक जाइए। पहला काम कीजिए कि 1930 पर आपको कॉल करना चाहिए। अगर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट कोई भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी चीज अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो रिपोर्ट एब्यूज जो बटन होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। इफ रिपोर्टेड बाई 10 डिफरेंट IPs, मतलब 10 अलग अलग मित्र आपके अगर उसको रिपोर्ट करते हैं कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर इंफॉर्मेशन दी गई है ये गलत है, इम्प्रॉपर है, वल्गर है, तो उसको उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। उसके लिए आपको पुलिस के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस में आप बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे ये मालूम पड़ सके कि ये काम किसने किया, लेकिन उस कंटेंट को हटाने के लिए आप स्वयं सक्षम है और रिपोर्ट अब्यूज बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक में राइट हैंड साइड पर जो 3 बटन होते हैं उसको आप प्रेस करेंगे तो नीचे लास्ट बटन अब्यूज, रिपोर्ट अब्यूज आएगा, और रिपोर्ट अब्यूज में भी आएगा, वो सवाल पूछेगा आपको कि ये जिसकी फोटो लगी है वही आदमी है, इसमें क्या गलती है, ये सारी ऑप्शंस आपको देगा वहां पर। और अगर आप हैरेस्ड हैं बाय नोन और अननोन, आइदर इन डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, तो यूपी में हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ एक 1090 सर्विस है, 1090, और बड़ी इफेक्टिव सर्विस है। वहां पर सारी जो ऑपरेटर्स हैं, कॉल ऑपरेटर्स हैं, वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो कोई महिला को अगर कोई हैरेसमेंट होता है तो 1090 पे कॉल करती है तो उसको उसका कॉल एक महिला अटेंड करती है, तो आप समझ सकती हैं कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस आता है अपनी बात को बताने में, अपने प्रॉब्लम्स को बताने में। और जब उस पे उसका रिजोल्यूशन होगा तो भी महिला कॉल करके उसको बताती है कि आपकी समस्या इस प्रकार से हल हो गई है। कोई लड़का तंग कर रहा है तो उसकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग नहीं होता है तो थ्रेट होता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 1930 है, ये हर बैंक इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं उदाहरण के लिए एक HDFC बैंक का जो पोर्टल है उसकी बात कर रहा हूं कि जितने भी टाइप के क्राइम ऑनलाइन हो रहे हैं उन सभी के बारे में 1930 पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसमें इस प्रकार से लिंक्स बने हुए हैं और तत्काल वो एक के बाद अलग अलग स्टेप पर चलता चला जाएगा। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिस पर रिपोर्ट करते हैं, सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। ये एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाता है, कंप्लेंट का PDF आपके पास आ जाता है, और उसके बाद फिर इसमें कार्रवाई होती है। ये अलग अलग केसेस हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कितना पैसा उनके अकाउंट से गया, किस तरीके से गया।
ये सारे डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि ये 24/7 काम करता है। आप किसी भी समय इस पर कॉल कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट के आधार पर वेबसाइट पर जाके इसका स्टेटस देख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली ये कॉल जो एड्रेस आपने लिखवाया है अपनी कंप्लेंट में, उस पुलिस स्टेशन पर 24 घंटे के अंदर आ जाता है। आप पुलिस स्टेशन जाकर अपने कंप्लेंट का अपडेट भी ले सकते हैं। तो मेरी ओर से इतनी ही बातें हैं। अगर मैं चाहता हूं कि अगर ऑडियंस की ओर से कोई सवाल हो, इसके बारे में कोई जिज्ञासा आपकी हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. It was so insightful, and you have touched all the verticals, right from the beginning about cyber crime, space crime, who are prone, what are the strategies used by, and then how to get relief, from where to get relief. Thank So you very if- much. Thank you. So if anybody wants to ask question, सर इसमें जैसे मतलब कई बार होता है कि फ्रॉड हो गया या पैसा निकल गया अकाउंट से एंड ओटीपी दिया और फिर अकाउंट निकला, तो लाइबिलिटी कंज्यूमर की रहती है बिकॉज ओटीपी दे दिया, मतलब उस केस में मतलब लाइबिलिटी किसकी है सर? मतलब कंज्यूमर ने तो ओटीपी दे दिया उस केस में। हाँ, देखिए, बैंक ये कहता है कि हमने आपको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में काम करने का मौका दिया, लेकिन आपने खुद विलिंगली कॉम्प्रोमाइज हो गए आप, तो उसमें बैंक की लायबिलिटी नहीं होती। उस केस में इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही कोई रेस्पाइट मिल सकता है, या 1930 के माध्यम से रेस्पाइट मिल सकता है। 1930 आपसे ये नहीं पूछता है कि ये गलती आपके कारण हुई या फ्रॉडस्टर ने ट्रिक किया आपको। 1930 पे अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट एक बोनाफाइड कंप्लेंट की तरह ली जाती है। ओके तो जैसे अभी इससे पहले सर बता रहे थे, रक्षित सर, की जो एसएमएस फॉरवर्डिंग एप्स वो सब आपके फोन पे इंस्टॉल कर देते हैं, तो इवन इफ अगर ओटीपी से भी होगा वी कैन स्टिल कंप्लेंट ऑन 1930। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर रेजोल्यूशन परसेंटेज कितना है? सपोजिंगली 100 कंप्लेंट्स आती है तो मतलब 2-3 महीने 1 महीने में कितनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो जाती है यूजुअली? देखिए, जो पैसा होल्ड हो जाता है, उस होल्ड में तो 100% पैसा वापस हो जाता है। थोड़ा समय लगता है, 2 महीने 3 महीने का, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से, कोर्ट के ऑर्डर से। और जहां पर होल्ड नहीं हो पा रहा, वहां रिजोल्यूशन एक 20 से 25% है केवल। क्योंकि साइबर क्राइम में आप भी समझते हैं कि साइबर क्रिमिनल बेंगलोर में बैठा है, पैसा ट्रांसफर कराया उसने जामताड़ा में, वहां से निकाला उसने रांची में, खर्च किया भोपाल में। तो इतनी ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि एक यूनिट ऑफ पुलिस को ये सारा करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सो 1930 में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस स्टेशन ही उसके बाद जाएं या कोई अलग सेल होता है सर इसके लिए? नहीं, 1930 के बाद आप पुलिस स्टेशन जाएं, और जिस भी शहर में ये घटना हुई है वहां के साइबर सेल में भी आप एक कंप्लेंट दे सकते हैं, तो वो फास्टर हो जाएगा। जी तो होगा सर इसका कोई वेबसाइट जहाँ पर हम कंप्लेंट लॉग कर सकें? हाँ, 1930 है, या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। ओके सारे Very बैंक nice. के सर, सारे बैंक्स के फ्रंट पेज उस पे भी होता है ना वेबसाइट में, इट इज ऑन द वेरी फर्स्ट हाँ पेज। हाँ, जी जी, हाँ, हाँ, सारे बैंक सारे पर भी बैंक्स होता में है। है आजकल जी, 1930। जी जी जी। and they tell step by step process also कैसे करना है। जैसे हाँ आपने हाँ, क्या ट्राया, अभी HDFC का दिखाया हमने आपको। हाँ जी, जैसे तो ट्राया है ये ना, पुलिस जी एंड बैंक्स एंड विक्टिम। गवर्नमेंट ने सर जी जैसे मतलब आई थिंक ये भी एक बडिंग फील्ड है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जी। who help civilians reach the laws. So साइबर सिक्योरिटी में भी गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ, जैसे भी रक्षित सर बता रहे थे कि स्टूडेंट्स को वो ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ कंसल्टेंट्स या ऐसे ये भी कुछ गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि जो बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर ये काम चल रहा है। हर स्टेट में भी चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, फंडिंग भी करती है, NGOs को जोड़ती है। बहुत बड़े लेवल पर ये काम हो रहा है। ओके तो सपोजिंगली आज मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या किसी के साथ भी फ्रॉड हो जाता है, तो 1930 में कंप्लेंट करने के बाद हम लोग कोई एक प्राइवेट बंदे को ये काम दे सकते हैं कि इसको फॉलो अप करके वो मतलब पैसा किस तरह से वापस आ जाए?
अब वो प्राइवेट आदमी को देने से इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि वो प्रोसेस तो गवर्नमेंट का सिस्टम ही करेगा। प्राइवेट फॉलो अप जो रहता है ना, that हाँ, follow फॉलो up अप and के लिए reaching the कर right सकते हैं date. आप, फॉलो अप के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने काम दिया है, आउटसोर्स किया है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स हैं, आर देयर सम प्रोफेशनल्स लाइक दिस नहीं, अभी हु मेरी हेल्प टू जानकारी रिकवर? मेरी जानकारी में अभी अभी ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं बना है मेरी जानकारी में जी। ओके, राइट सर। एक क्वेश्चन आया है सर, दीपक टंडन जी ने पूछा है, कैन द पुलिस इशू समन द कंप्लेंट्स एंड आस्क इंट्रिकेट डिटेल्स आफ्टर 1 year? What precaution to adhere, sir, by complainant? क्या मेरे ख्याल से उनका कहने का मतलब है कि देर से भी रिपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं? I think I read it after, हाँ, मतलब पुलिस क्या 1 साल के बाद भी डिटेल जाते हैं? कंप्लेंट तो हमने आज कर दिया, बट पुलिस ने डिटेल्स एक साल बाद मांगा। तो कंप्लेंट बेसिकली मैंने कंप्लेंट किया और मेरे को पुलिस ने समन किया कि भाई अब तुम आओ और डिटेल बताओ आफ्टर 1 year। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, इसमें बड़ा क्विक काम होता है क्योंकि 1 साल तक अगर डिटेल्स नहीं मांगे हैं तो फिर आगे उसमें काम होना बड़ा मुश्किल है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इट इज क्विकर देन दैट मच ऑफ टाइम। ओके, सो बट वो मांग सकते हैं 1 साल के आप बाद मांग भी, या? सकते हैं, मांग सकते हैं, तो ठीक डिजिटल है, रिकॉर्ड है। ओके, ठीक है। आई कैन इट गो टू कोर्ट्स और एक्स पार्टी बी डन? से इट अगेन प्लीज। दीपक, ये कोर्ट में भी जा सकता है सर, या कोर्ट में ही जाता है मैटर ये? हाँ, कोर्ट में जाता है, जो पैसा रिफंड होता है वो कोर्ट के ऑर्डर से ही होता है। ओके, ओके। एफआईआर बनस, होती है। ओके, मतलब नॉर्मल प्रोसीडिंग्स रहता है जो क्राइम जी का जी प्रोसीडिंग। जी। ओके। एक बनस थली जी ने पूछा है, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू कैच दीज पीपल? सो आई थिंक वो तो काफी कुछ काम चल रहा है। काम चल रहा है, एफर्ट्स हैं। राइट, ठीक है। सो नीलम जी और एनीबडी एल्स हु वुड वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द क्लोजिंग टाइम। सर अरविंद सर, एक क्वेश्चन, जैसे रक्षित सर ने कहा साइबर हाइजीन, जी उसके लिए जैसे एक लेमैन है, वो तो सारे फोटोज अपने सब उसी में डालता है फोन में, दे फील मोर सेफर टू कीप एवरीथिंग ऑन इन देयर फोन ओनली। तो उसके लिए क्या हो सकता है टू सेफगार्ड कि ये कहीं मतलब मिसयूज ना हो जाए? अब जैसे मैंने कहा कि हम मोबाइल पर भी एंटीवायरस डाल सकते हैं, एक बेसिक प्रोटेक्शन उससे हो जाता है। दूसरा ये कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी पर्सनल फोटोज बहुत शेयर नहीं करें, हम डिजी लॉकर का इस्तेमाल करें, बजाय जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ओपन फोल्डर में रखने के डिजी लॉकर इस्तेमाल करें। ये सारी मतलब हैं इस डिजिटल हाइजीन से जी। ये 1930 में सर आरबीआई भी होता है रोल, या फिर ये बैंक्स एंड पुलिस का ही होता है? नहीं, आरबीआई 19 नहीं होता इसमें ये just through banks, because मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो जी जैसे बैंक को गाइडलाइंस होता है कि विद इन 30 days यू हैव टू गिव द डिटेल्स, अदरवाइज जी वो क्रेडिट करते हैं और फिर उसके बाद वो फिर से डेबिट कर लेते हैं वो पैसा जब जी। वो। तो उस केस में आरबीआई का कोई रोल नहीं होता, ये आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं बस। गाइडलाइंस के थ्रू बैंक्स ऑपरेट करेंगे और वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो ये बहुत बड़ा इशू है सर इंडिया में, जैसे आपने बताया, जी like people are playing with the mind of victims, they emotionally करते हैं। डेफिनेटली हाँ, वो पैनिक क्रिएट करते हैं, थ्रेट करते हैं, फियर करते हैं, exactly. ल्योर करते हैं, ग्रीड है हमारे अंदर, ये सारी चीजें मिला के और fear and threat अल्टीमेटली हिप्नोटाइज करते हैं। is very important. और विक्टिम कहता है अपने इंटरव्यू में बाद में कि हम ऐसा सोच नहीं सकते कि हमने ऐसा किया। Exactly. अभी तो सर बहुत केसेस हुए हैं, जैसे न्यू अकाउंट्स के हुए हैं, जिनको बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उनका अकाउंट डॉर्मेंट है, उसमें डाल दिया पैसा, हाँ एंड हाँ देन सारा सिफनिंग ऑफ हाँ फंड्स करने के लिए हाँ हाँ। ये भी एनआरआई
हाँ। NRIs के जो अकाउंट्स हैं बहुत से डॉर्मेंट हो जाते हैं, उनको एक्टिव करके पैसा निकाल लेना, जैसे बहुत से केसेस हो रहे हैं ऐसे। Thank you so much, sir, for sparing your time. It was Thank you. like eye-opening session for, I believe, all of us. We have learned a lot, and this Thank you. 35-40 minutes is not going to suffice to get 100% awareness and literacy in terms of cyberspace. Because the I way think, setting, yes. yeah, I think last session we had done with Neelam ma'am was on investments. मुझे लगता है आज हम अपने फोन को सेफ रख ले, वो भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो पैसा जो Investment है। खोएंगे उसी हाँ। को बचा ले, तो I think that itself is a saving of money. Credit, हाँ। and आज की generation तो everybody they are relying on phone and they are getting into. मैं मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ सर, दे आर लाइक हम क्रिप्टो में ही डालेंगे पैसा, दे डोंट रियलाइज कितना रिस्की है ये। हाँ, कितना रिस्क है। That is why these seminars are important, and नहीं, very useful and yes, thank you so much for joining us, sir, at thank you. this time. Before Thank before you. we wind up, I simply want to introduce our organizers because without them, this event would not have been possible what we did. So I requested Dipankar sir, he said, let's go for it because this is very important. It took some time to organize it and this would not have been possible without नीलम this. मैम आप ही करते हो सारा, मतलब वो तो I think you नहीं, just नहीं, stamp our sir, name, Dipankar, but that is very it's generous you of who you. are, you know, talking to Arvind sir, आपको Rakshit जैसे sir, and तो जो लोग हैं उनसे मैं शेयर कर दूं आपके बारे में and agility के बारे में. And apart from that, this Wellbeing Shiksha Foundation is working for inclusive, sustainable, and equitable in terms of financial inclusion and well-being of the people. So please don't get trapped into any of financial information which you get from any unauthorized source. Do not rely on anyone. Do not indulge into greed. Please do differentiate between greed and wealth. That's very important. That's the message I want to convey from Wellbeing Shiksha Foundation and on behalf of all organizers and our respected guests today for the session. So for Ajanta Bottle, I would like to introduce. So Ajanta Bottle is a company renowned for over 43 years of excellence in the packaging industry. Ajanta Bottle is committed to providing high quality and innovative packaging solutions, always with a focus on sustainability, under the visionary leadership of their director, Dipankar sir, I've already shared. And they continue to set new standards in the industry. Apart from that, they're helping society also. So that's a very unique feature of Ajanta, I would say. Same goes for Agility Group. So Agility Ventures is a leading angel investor network making waves in the investment landscape. Agility Venture focuses on early stage businesses with the potential to create significant value with an ever-growing network with 350 investors, including experienced leaders and experts. Agility provides invaluable guidance and consultation. So I would like to thank each one, those who have joined today and our organizers, and thank you so much to Rakshit sir and Arvind sir for making us aware today about this. So thank you so much. okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. sir. Thank you. Thank you. So we may close the meet, sir.